Hello and welcome to Crypto TV. This is Manoj Dara and welcome to the segment 2 of Central Bank Digital Currency. In this segment, we will discuss why this RBI is cautious on the rollout of CBDC, and with us is Mr. Prasanna Lohar, Chief Innovation Officer of DCB Bank. Prasanna, welcome on the show. Thank you, Manoj, for being here at Crypto TV. It's always a great pleasure to be here at Crypto TV for blockchain and relevant terminologies. Yeah. Sure. Feb 1st announcement आई थी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की, और वहाँ से 9 दिन बाद गवर्नर शक्तिकांता दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दे आर कॉशियस ऑन रोलिंग आउट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज. ये 9 दिन का जो पीरियड उन्होंने लिया, क्या वो तैयारी कर रहे थे फॉर द लॉन्च, एंड हाउ टू अप्रोच दिस, एंड हाउ डू यू रीड द स्टेटमेंट्स ऑफ आरबीआई? Yeah, I think it's very, very important to read those statements, right? Ki 1st February, as you said, Honorable Finance Minister announced that India will be coming up with a digital rupee maybe 2022 and 2023 in between. And at the same time, recently we heard RBI statement that it's a cautious approach. Right? Exactly. But in my view, both the things are absolutely right and much needed for a country like India after a pandemic, after so many challenges which we have seen last 2 years. We have seen UPI kind of innovation in the last decade, right, which has given a lot of a digital adoption, digital payment adoption for India like country. Here onwards, if you want to be one of those strong economy, while other countries are working on CBDCs, we need to be there. Perfect. So it was a huge pressure on a finance minister or Indian government, what all new things we can do with the technology. Sure. So budget comes this year, so obviously we have to announce during February, right? So, and it is a KRA, right? RBI has to deliver that. But at the same time, central bank, our central bank has in the past done so many innovations, right? And I think we are gifted, or we are blessed with RBI, which drives a lot of innovations on security, digital payments, various new business models that we have seen. Similarly, the way RBI has spoken yesterday, it will be a cautious approach. This is what happens in every delivery. Sure. It's cautious means it will be thoughtful, all specifications will be written, it will be given it to the tech companies to come up. Monetary policy, which is a very big change, the way we have seen other countries, right? Some of the countries have failed to do some better monetary policy changes. So I think India is such a country which is sitting on so many monetary policies, so many instruments, financial instruments. So it makes sense. RBI comes and says it will take some time, but the speed is huge. We need to go step by step so that whatever we will build as a form of a digital rupee for our countrymen and various other use cases for banks has to be world class. Sure. That is why that statement. But at the same time, they will make it happen this year or next year. There is one more statement which I want you to discuss and to explain this to our viewers. Is a statement which has come that by experts, by crypto experts or blockchain experts, that blockchain might not be the best technology for rollout of CBDCs. And उसके जवाब में हमारे जो डेप्यूटी गवर्नर है टी रविशंकर जी, उन्होंने कहा कि दे आर ओपन ऑन अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल. Absolutely. तो ये फर्स्ट एक एक्सपर्ट्स का व्यू, और उसके बाद में इनफैक्ट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि वो रोल आउट करेंगे बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. करेक्ट. तो ये सारा सीक्वेंस को आप कैसे रीड करते हैं और उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? जब सो आई थिंक ये बहुत थॉटफुली उन्होंने कहा है, और जब भी ऐसे स्टेटमेंट आरबीआई से आते हैं उसका ऑलरेडी स्टडी हुआ होता है कि वो क्यों बोल रहे हैं ऐसे. उन्होंने जितना मेरा बात होता है इकोसिस्टम में एंड विद आरबीआई मेंबर्स, जिस हिसाब से स्विट्जरलैंड ने, स्वीडन ने, चाइना ने, देयर आर स्मॉल कंट्री जैसे कंबोडिया है, कैरेबियंस है, जिन्होंने अपनी अपनी सीबीडीसी बनानी है, उनके खुद के एक्सपीरियंस है टू रोल इट आउट एंड सो ऑन. सो टिपिकली 4 स्टेप्स होते हैं सीबीडीसी बनाने के. सबसे पहला स्टेप होता है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करो, मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस करना है वो कर लो. सेकंड स्टेप होता है टेक्नोलॉजी चूज करो. फैंटास्टिक. कि सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी करना है कि डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी करना है. ई कोरोना जो है वो ब्लॉकचेन पे नहीं था, जो एक सीबीडीसी है, तो उस हिसाब से ही ये ब्लॉकचेन पे नहीं हो सकता है कि कोई और टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें, जैसे हमारी वेब 2.0 में सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी उसको भी यूज़ कर सकते हैं. राइट. बट जब हम बोलते हैं, जब आरबीआई ने कहा है कि हमारी सीबीडीसी आएगी जिसमें डिजिटल करेंसी को हम लोग ट्रेस कर सकेंगे, ट्रांसपेरेंसी आएंगी, उसके लिए ब्लॉकचेन जरूरी है. तो हमारा वो फेज वाइज अप्रोच भी हो सकता है
कि पहले CBDC लेके आइए, पायलट कीजिए, उसके लर्निंग्स लीजिए और उसके बाद में गो विद बिग बैंग विद राइट ब्लॉकचेन काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी। बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी कुछ चैलेंजेस है, इंटरऑपरेबिलिटी, टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4-5 years दिस चैलेंज आर गेटिंग सरपास, बट इट विल टेक सम मोर टाइम। अभी आप देखिए UPI जब 2016 में 4 बैंकों ने पायलट किया था, जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था, DCB बैंक ने, अप्रैल 2016 में अनाउंस हो गया था कि UPI आ गया। बट एक्चुअल एडॉप्शन कब चालू हुआ? डिमोनेटाइजेशन के बाद में। बट आपको पता है कि जब UPI बना था उसको 3 साल गए बनाने के लिए। बिल्कुल, स्पेसिफिकेशन से लेके एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए 3 साल, जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे। अब आप बोलोगे ब्लॉकचेन पे भी बनाना है, अगले साल बनाना है, तो आई थिंक इट मेक सेंस, हमें एक मिडवे निकालना पड़ेगा, छोटे छोटे यूज केस देखने पड़ेंगे जहाँ पे POC पायलट करके इंडिया कैन लर्न अबाउट मेनी थिंग्स। तो पहला होता है मॉनेटरी पॉलिसी, टेक्नोलॉजी। तीसरा एस्पेक्ट जो होता है कि ये इसका एक्सेस कैसे दिया जाए, एनोनिमस दिया जाए कि अकाउंट बेस्ड दिया जाए। फैंटास्टिक। और लास्ट एस्पेक्ट होता है यूज केस, वो रिटेल है जैसे आम लोगों के लिए, या फिर जो होलसेल है जो बैंक टू बैंक और कंट्री टू कंट्री रिलेवेंट ट्रांजैक्शन। तो ये 4 एस्पेक्ट को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है CBDC या सिर्फ कुछ एस्पेक्ट को, उस हिसाब से हमारा टाइमलाइन फिक्स किया जाएगा। बहुत ही बेस्ट तरीके से आपने 4 स्टेप में समझाया कि CBDC क्या है, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था ये 4 स्टेप्स। बट आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर द मेन इंटेंशन इज टू track the payment. Yes. So I do understand that the broader concerns on privacy can come up. Yes. So इसको लेकर आपका क्या राय है, और क्या is this the move by the central government to track all the payments, or is this what the RBI is intending going forward as well? तो चलो हमने वो 4 स्टेप्स देखे कि कैसे CBDC बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो अभी जैसे कि बहुत सारी दुनिया ने अपना अपना CBDC बनाया है, राइट? तो वो सारे एक्सपीरियंस अगर इकट्ठा करते हैं तो देयर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस और लेसन्स लर्न। जो आपने कहा प्राइवेसी इज वन ऑफ द बेस्ट लेसन लर्न फ्रॉम ऑल द CBDCs। तो हो सकता है कि वी विल स्टार्ट विद अ स्मॉल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, स्मॉल टिकट साइज, राइट? लेकिन आई विल नॉट ट्रांजैक्ट ना, अगर मुझे पता है कि मेरा ट्रांजैक्शन ट्रैक हो रहा है तो आई माइट नॉट प्रेफर टू यूज CBDC। तो उसमें भी वही एक्सेस टाइप से अकाउंट बेस्ड या फिर है आपका टोकन बेस्ड, उसके हिसाब से एनोनिमस टाइप ऑफ होके। जैसे नंदन नीलेकनी ने इसलिए इमीडिएटली गाइडलाइन दिया है, सजेशन दिया है कि इंडियन CBDC शुड बी एनोनिमस। फैंटास्टिक, राइट? उसके अलावा भी बहुत सारे लेसन्स लर्न है। मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन डिफाइन करो, कोलैबोरेट करो दूसरे कंट्रीज के साथ, उन्होंने कैसे किया है, ये सारे लेसन्स हम लोग एक्यूमुलेट करके राइट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे तो विल हैव अ बेटर CBDC। तो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में अलाइन करो, जैसे आप बता रहे थे, तो हाउ विल CBDC चेंज द मॉनेटरी पॉलिसी? अगर आप अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई नया इकोसिस्टम में कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो वी हैव टू आल्सो एडजस्ट अकॉर्डिंगली। सो क्या RBI is ready to adjust for this new technology they are bringing in? Are they going to become more flexible? So अभी इसमें कुछ अलग अलग व्यूज आ सकते हैं, जैसे कि मेरे 2-4 व्यू है। इफ़ यू लुक एट द मनी हिस्ट्री, जो मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, और बैंकिंग हिस्ट्री, हाउ कम ऑल ऑफ अ सडन US डॉलर बिकम पावरफुल? वाई नॉट चाइना और वाई नॉट इंडिया? इंडिया तो वॉज अ गोल्डन कंट्री, राइट, वे बैक इन 1600 century and so on, right? So I think the whole history talks about how economy grows, who has become stronger, right? So environmental aspect भी बहुत सारे मायने रखते हैं। Exactly. अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि CBDC आएगा, राइट, CBDC आएगा तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट? तो इसमें ये एक चीज़ है, अगर करंटली जो आपका पेपर मनी है अगर आपके पॉकेट में है तो उसका इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता मुझे एज अ बैंक और एज अ रिजर्व बैंक। बट ये डिजिटल रुपी आपके पॉकेट में है, आपके वॉलेट में है, तो उसका मुझे इंटरेस्ट देना है नहीं देना है? नहीं देना है। तो ये सारे चेंजेस मॉनेटरी पॉलिसीज में आएंगे। अब वो चीज़ है तो ऑटोमेटिकली दूसरे सारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट बेस्ड अपॉन डिजिटल रुपी, उस पर मैं क्यों दूंगा इंटरेस्ट रेट? तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है और बहुत सारे एरियाज है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी थॉटफुली क्रिएट करनी पड़ेगी, चेंजेस क्रिएट करने पड़ेंगे, बहुत सारे रिविजन्स होंगे, इंटरनली साइन ऑफ होगा, तब जाके ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया जाएगा। फैंटास्टिक। so, आपने कहा कैन यू जस्ट शेयर सम यूज केसेस? जैसे आपने कहा कि जापान का रोल आउट है, दुबई का रोल आउट है, जैसे आपने कंबोडिया और एक और कंट्री का भी एग्जांपल दिया था। तो प्रसन्ना, कैन यू जस्ट शेयर विद आवर व्यूअर्स कि CBDC रोल आउट तो उन्होंने किया ही,
लेकिन क्या क्या दिक्कतें आई थी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में, और उसके बाद में प्रिवेसी का जैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ से क्या इंडिया सीख सकता है और उससे क्या टेक अवेज है? तो टेक अवेज है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं बहामास का सीबीडीसी, तो उन्होंने ये देखा ही नहीं था कि इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, राइट? Okay. तो दे हैड टू रोल बैक फॉर सम टाइम, राइट? एंड दे रिक्रिएटेड दोस। आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीबडी इज डूइंग। कंबोडिया, जिन्होंने अभी आई थिंक कंबोडिया में तो ऑलमोस्ट सभी के पास सीबीडीसी है अभी in the last couple of years which they have started, so which is a retail kind of a peer to peer payment. उनके पास यूपीआई जैसा हमारा जैसा यूपीआई है, they have a system called FAST, फास्ट। सुपर, तो वो सीबीडीसी पे आया है उसका पूरा। फैंटास्टिक। अब आप बोलो ये तो रिटेल हो गया। जैसे चाइना में जैसे कि पेमेंट एट मैकडोनल्ड्स या फिर सबवे है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने पुश किया है कि आपका सीबीडीसी से ही, युआन से ही पेमेंट करना है। सो इट्स अ पुश फ्रॉम टॉप, राइट? सो इन इंडिया आल्सो वी शुड bring that kind of a ecosystem push from top for certain commodities. Got it. अब देखते हैं wholesale, जैसे कि between Canada and Singapore. Right. Cross border payments. Cross border. Trade finance. Yes, not trade finance, but a cross border payment, जिसमें बहुत सारा manual operations होता है, it takes lot of time and too much of a cost involved. तो वो cost कम हो सकता है। Sure. अब इंडिया के यूज केस कैसे होंगे? जैसे कि रिटेल यूज केस अगर लेते हैं, जैसे कि पंजाब में जो पनग्रेन का पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें फार्मर कम्स एंड सेल ऑफ हिज व्हीट, राइट? और 2013-14 के आसपास हमने पनग्रेन प्रोजेक्ट एंड उसके अराउंड 4-5 सब्सिडरी है पंजाब में, तो उन्होंने एक रुपे कार्ड लॉन्च किया था जो फार्मर के दिया जाता है, और फार्मर अपना व्हीट लेके आता है और मंडी में उसको सेल करता है, और सेल करते समय वो ट्रांजैक्शन जब करता है, ही डज नॉट ट्रांजैक्ट मनी बट ही ट्रांजैक्ट्स हाउ मेनी क्विंटल्स, हाउ मेनी गोनीज वो ट्रांजैक्ट कर रहा है, उसका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके उसके अकाउंट में पैसा जाता है। फैंटास्टिक। अब ये यूज केस है ट्रेडिशनल बैंकिंग के, जिसमें रिकंसिलिएशन जो मैं बात कर रहा था एक से हमारे सेगमेंट में, उसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब ये कम्युनिटी में आई कैन लॉन्च बिटकॉइन विच इज बैक्ड बाय लीगल टेंडर, नो ऑपरेशंस, लेस ऑफ करप्शन, actual rate is given to the farmer, immediate money is given to the farmer, right? So अब आप देखिए कि कल जाके मैं मिल्क कॉइन बना सकता हूँ गुजरात में, जहाँ पे lot of paper currency handling happens, right? So we can do away with all these extra things, extra operations which we are handling. सोलर कॉइन है, या फिर महाराष्ट्र में इतना शुगर है तो वी कैन कम अप विथ शुगर कॉइन, जिसमें सारा ट्रांजेक्शन उसी रेगुलेटेड करेंसी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे यूज केस आएंगे जो नॉर्मल सिटीजन्स को यूजफुल होंगे। एट द सेम टाइम डिजिटल रुपी के जो एडवांटेजेस है उसका भी इंडिया फ़ायदा ले सकता है। श्योर, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस लॉन्च, एंड बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया ये। बट प्रसन्ना, वी हैव क्रिएटेड आधार, वी हैव क्रिएटेड यूपीआई, सो ये लाने से हम आर वी गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील? ये क्या प्रोसेस है, जरा आप बताइए फिर। ये बहुत बढ़िया सवाल है कि हमने आधार बनाया, इतना सारा करोड़ों का खर्चा किया है, इतना सारा एडॉप्शन करने के लिए भी एक वेव बनाना पड़ता है, और यूपीआई बनाया तो अभी इसका एडॉप्शन ऑलरेडी हो गया है। अब कल बोलेंगे यार अभी इसको यूज़ करो, तो ये ऐसा नहीं होगा। इंडिया सीबीडीसी विल बी वन ऑफ द बेस्ट सीबीडीसी, बिकॉज हमारे पास सीबीडीसी बनाने के लिए जो रेल रोड चाहिए होते हैं, हमें 4-5 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर चाहिए होता है, एक तो वेरी गुड डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम चाहिए होती है जो आधार के माध्यम में हमारे पास ऑलरेडी है। परफेक्ट। एक पेमेंट इकोसिस्टम जो चाहिए होता है, जो यूपीआई है, अभी ई रूपी लॉन्च हुआ है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट इकोसिस्टम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वॉलेट काइंड ऑफ ऐप चाहिए होता है, वो ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, गूगल पे, फोन पे, उसमें एक और एक आ जाएगा पे बाय डिजिटल रूपी बेस्ड अपॉन यूज केस टू यूज केस। तो सीबीडीसी बैकएंड में रहेगा, इट विल ओपन अप वेरियस वेव्स लाइक एपीआईज, या फिर जो मैकेनिज्म है ओपन अप रहेगा एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के लिए। तो हम लोग एग्जिस्टिंग रेल रोड्स को यूज करेंगे, वो बनाएंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीबीडीसी इम्प्लीमेंटेशन, उन्हीं कंट्रीज ने सीबीडीसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिनका रेगुलेशन, जिनका सेंट्रल बैंक, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। फैंटास्टिक। सो आरबीआई इज ब्लेस्ड विद दैट इज वाई डिजिटल रूपी इज द वन थिंग विच वी कैन बिल्ड। एंड एज यू सेड, आधार, यूपीआई, अकाउंट एग्रीगेटर, ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स वी आर ब्लेस्ड विद, एंड आई थिंक दीज रेल रोड्स विल बी हेल्पफुल टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास सीबीडीसी फॉर इंडिया।
Fantastic. That's a word coming in from Mr. Prasanna Lohar that India should adopt CBDCs, and there are a lot of positive takeaways from the discussion. I hope that इस segment 2 में आपको ये पता चला कि RBI का cautious stance क्यों है CBDC पर, and going forward India कैसे benefit कर सकता है in this special segment on central bank digital currencies. We are also going to bring in a segment 3 for you, जहाँ पर हम बहुत सारे panelists को भी introduce करने वाले हैं to discuss about this central bank digital currencies only for you and only on Crypto TV. Thank you so much.